میرے والدین نے مجھے ناز و نام سے پالا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تو نہیں تھی، مگر بیٹیوں میں اکلوتی تھی۔ ابا کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ان سے بہت پیار کرتے، مگر ابا کی نظر مجھ پر رہتی۔ وہ مجھے پھولوں کی طرح رکھتے تھے۔ اسی لیے جب میری شادی ہوئی تو ایک نہایت ہی اچھے اور معقول گھرانے میں میری شادی کی تھی۔ شادی جس گھر میں ہو کر میں گئی تھی وہاں صرف 2 بھائی تھے۔ نندوں کا چکر نہیں تھا، جبکہ میرے شوہر کی چچا زاد بہنیں کبھی کبھار ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں۔ سسر بھی نہ تھے، بس ایک ساس اور ایک دیور۔ میرے لیے یہ گھر جنت کے جیسا تھا اور ابا کا بھی یہی خیال تھا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس بظاہر ہنستے بھستے گھرانے میں کتنی ہی تاریکیاں چھپی ہوں گی۔ میری شادی کا دن تھا جب میں خوشی خوشی بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابا نے مجھے سمجھا بجھا کر بھیجا تھا کہ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر و عزت کرنا۔ تم جتنا اس کا خیال رکھو گی وہ اتنی تمہاری عزت کرے گا۔ میں ابا کی یہ بات اپنے پلو سے باندھے بیٹھی تھی، مگر پھر میں بیٹھی ہی رہ گئی تھی کیونکہ رات کا 1 بج گیا تھا۔ ابھی تک میرے شوہر نامدار کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے کافی دیر گزر گئی۔ اب تو میری کمر اکڑنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سونے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ دیکھا تو سامنے 17-18 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ تو تھک گئی ہوں گی، آپ کو اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے لے آتی ہوں۔ شاید یہ میرے شوہر کی چچا زاد بہن ہی تھی جو مجھ سے پوچھنے آئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرے دل میں عجیب سے خوف ہیں۔ وہ میری ارادے بھانپ گئی، کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں بھابھی، بھیا باہر دوستوں میں ہیں۔ دراصل آصف بھائی زیادہ تر مصروف رہتے ہیں تو ان کے دوستوں کو ان سے ملنے کا زیادہ موقع نہیں ملتا۔ جب بھی شادی والے دن انہیں پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ آپ بالکل پریشان مت ہوں، تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور چلی گئی، جبکہ میں پھر سے عاصر کا انتظار کرنے لگی، مگر عاصر نے نہ آنا تھا، سو وہ نہ آئے۔ 1 بجے کا وقت گزر گیا، 2 بھی بج گئے۔ اس وقت پورے گھر میں خاموشی تھی کہ جب ایک شور سا اٹھا۔ باہر اونچی اونچی آواز میں کچھ عورت تھی جو باتیں کر رہی تھی۔ پھر کسی عورت کے رونے کی آواز آئی اور ایک مرد کے چیخنے چلانے کی۔ میرا دل تو بڑا چاہا، تجسس بھی بہت ہوا کہ میں اٹھ کر باہر جا کر دیکھوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، مگر یہ ہنگامہ جاری رہا۔ نئی نویلی دلہن تھی، یوں اٹھ کر لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، سو میں بیٹھی ہی رہ گئی۔ لیکن آج سوچتی ہوں اس وقت وہ لڑائی دیکھ لیتی تو میرے دل میں بوجھ نہ رہتا، نہ میں اپنے شوہر کے سامنے شرمندہ ہوتی۔ خیر، میں وہیں بیٹھی رہی۔ لڑائی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ختم ہو گئی۔ اب تو مجھے امید تھی کہ میرا شوہر شاید نہ ہی آئے۔ کیا معلوم دوستوں سے انبن ہو گئی ہو، کسی بھی قسم کی بدمزگی شادی والے گھروں میں ہو ہی جاتی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ خدا خدا کر کے میرے شوہر کمرے میں داخل ہوئے تو میں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب کم از کم میں سکون سے سو تو سکتی تھی، کیونکہ ان کے آنے سے پہلے میں دروازے کو بند بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کو دیکھتے ہی میں نے سلام کیا، مگر وہ اپنے چہرے پر تیوری چڑھائے دوسری طرف کو چل دیے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ان کا رخ غسل خانے کی طرف تھا۔ میں بس دیکھتی رہ گئی تھی اور پھر وہ غسل خانے میں گھس گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل پانی گرنے کی آواز آتی رہی۔ میں سمجھی نہیں تھی کہ وہ نہا رہے ہیں یا مجھے ٹال رہے ہیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی، سوچا کہیں آزما نہ رہے ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد غسل خانے کا دروازہ کھلا تو عجیب سی بدبو آنے لگی، جیسے وہ ابھی ابھی سگریٹ پی کر نکلے ہوں، اور واقعی وہ بو سگریٹ ہی کی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، جاؤ تم بھی جا کر فریش ہو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے نا، پورے دن سے تھک گئی ہوگی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے منہ چھپا رہا تھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے بات کرتا۔ میں ان کی اس حرکت سے بہت پریشان تھی۔ خیر، میں غسل خانے میں گئی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ وہاں سگریٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ میرے شوہر نے نہانے کے لیے نہیں بلکہ سگریٹ پینے کے لیے غسل خانے کا استعمال کیا ہے۔ پانی تو یوں ہی گرایا ہے، تبھی ان کے پاؤں سوکھے سوکھے لگ رہے تھے۔
मैं आपस में बातें कर रही थी। फिर मैंने कपड़े तब्दील किए, बाहर आई तो देखा आज़िर दूसरी तरफ मुंह करके लेटे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो यूं बन रहे थे जैसे मैं कोई उनके लिए गैर महरम हूँ या फिर मेरे से बात करना उनके लिए गुनाह का काम है। खैर, मैं भी सो गई। मैंने सोचा जो शख्स मुझसे खुद ही बात नहीं करना चाहता तो मुझे भी क्या पड़ी है कि मैं उसकी मिन्नतें करूं। यूं भी काफ़ी देर हो गई थी। वैसे तो मैं अम्मा अब्बा के घर भी रात को देर तक जागती थी, मगर आज बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था, सो मैंने आंखें मूंद लीं और सोने के लिए लेट गई। काफ़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो फजर की अज़ान हो रही थी। मैंने उठकर नमाज पढ़ने का सोचा, आज़िर को भी जगाने लगी, मगर ये देखकर मेरी तो जैसे हाथ ठंडे ही पड़ गए कि उनकी आंखें बंद न थीं, बल्कि वो खुली आंखों से दीवार को घूर रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्या वो सारी रात जागते रहे हैं? ये सोचकर आप सोए नहीं? मैंने पूछा तो वो रुखाई से बोले, तुम्हें इससे मतलब, जाकर नमाज पढ़ो और मुझे तंग न करो। ये रूखा फीका जवाब सुनकर मैं खामोश हो गई। मैं गुस्ल खाने में गई, वज़ू किया, नमाज पढ़कर अपने और अपने शौहर के लिए दुआ मांगी। नई ज़िंदगी के आगाज़ की ये पहली दुआ थी। मैं दुआ मांगकर फारिग हुई तो मैंने देखा मेरे शौहर ने अपने चेहरे पर कुछ ओढ़ रखा था। लग रहा था जैसे ये कोई मास्क वगैरह है। काले रंग का छोटा सा कपड़ा था, रुमाल की तरह। इन्होंने रुमाल अपने चेहरे पर रखा और कमरे से बाहर चले गए। मैं इस अजीब रवैये पर अभी तक हैरान थी कि आखिर ये क्या मुआवजा है। मुझसे अगर बात नहीं करना चाहते या इनकी ये शादी ज़बरदस्ती हुई है तो मुझे बता भी सकते हैं। यूँ मुझे रूखा फीका रवैया दिखाने से क्या ही हो जाएगा। मैंने सब्र व शुक्र किया। नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई और जब उठी तो मेरी सास दरवाजे पर खड़ी थी। बज रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरी बलाई लेने लगी। माशाल्लाह बहू, तुम तो मेरी सोच से भी बढ़कर खूबसूरत निकली, इसीलिए तो मेरा बेटा तुम पर फिदा हो गया था। इन्होंने अजीब से लहजे में कहा, जैसे वो मेरी इस बात से खुश ना हों। फिर मुझसे कहने लगी, तुम तैयार होकर नाश्ते पर आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर वो चली गईं। इन्होंने आज़िर का नहीं पूछा था, न ही मैंने बताया था। वैसे भी ये बताने वाली बात तो थी नहीं, खामखा मेरी ही बेइज्जती होती। यूँ मैं खामोशी से तैयार होकर नाश्ते पर चली गई। नाश्ते की मेज़ पर मैंने बहुत नज़रें दौड़ाई, मगर आज़िर कहीं भी नज़र नहीं आए। अब तो मेरी बेचैनी में इजाफा होने लगा था। मेरा दिल चाहा सास से पूछ ही लूँ कि आज़िर की शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की गई, मगर इस सब का कोई फ़ायदा नहीं था। सब अपने अपने खाने में मसरूफ़ थे। ख़ानदान के तकरीबन सभी लोग मौजूद थे, मगर मेरा शौहर वहाँ मौजूद नहीं था। मैं चुप करके खाना खा रही थी कि मेरी सास ने अचानक मेरी तरफ देखकर तंज़िया लहजे में पूछा, क्यों बहू, क्या तुम्हें अपना शौहर पसंद आया? यह अजीब सा सवाल था जो मुझसे करते हुए इन्हें सोचना चाहिए था, लेकिन सास के तेवर देखकर मैंने भी तनकर जवाब दिया, जी माशाल्लाह, आज़िर बहुत अच्छे हैं, नेक दिल इंसान हैं। मैं तो उनकी गर्विदा हो गई हूँ। अल्लाह ऐसा शौहर हर एक को दे। मेरी बात सुनकर ख़ानदान की सब लड़कियाँ मुझे अजीबो गरीब नज़रों से देखने लगीं, जबकि मेरी सास भी मुझे मशकूक नज़र से देखने लगीं। तो मैं हैरान होकर उनसे नज़रों ही नज़रों में पूछने लगी कि क्या मैंने अपने शौहर की तारीफ़ करके कोई गलती कर दी है। मगर अगले लम्हे ही जो बात हुई थी उसने तो मेरे सर पर क़यामत गिरा दी थी। मैं तो जैसे खुद को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सास मुझसे अफसोस करने लगी, मैं जानती हूँ बहू, तुम नई इस घर में आई हो। मैंने भी अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो रात को ही एयरपोर्ट चला गया। कहने लगा कि उसे अब अमेरिका में नौकरी करना है। नौकरी करेगा, कुछ पैसे रुपए कमाएगा, तभी तो वापस आकर तुम्हारे लिए तुम्हारी शायान शान ज़िंदगी तुम्हें दे सकेगा। ये कहकर सास तो खामोश हो गई, मगर मैं उनका चेहरा देखने लगी। बेचारी अपने शौहर को भी देख न सकी। एक लड़की ने जब ये कहा तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अगर वो मेरा शौहर नहीं था जो मेरे कमरे में आया था, तो फिर वो कौन था?
मैं सास से भी पूछ नहीं सकती थी। अगर मैं ऐसा पूछती और ये सवाल करती तो यकीनन मेरी सास मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाती या ये कह देती कि मेरी बहू पर जन्नत का साया है जो इसे जगह जगह अपना शौहर नज़र आता है। खामोशी से सोचने लगी, उस शख्स का चेहरा याद करने लगी जो रात को मेरे कमरे में आया था। अजनबियों की तरह दूसरी तरफ मुंह करके लेटा रहा और सोया भी नहीं। जाहिर है उसकी आंख भी कैसे लगती, वो एक अजनबी था। खुदा जाने वो एक अजनबी बनकर मेरे कमरे में आया ही क्यों था, क्या चाहता था वो मुझसे। ये सोचते सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा। मैंने फैसला कर लिया, आज इस घर के सब मेहमानों से मिलकर रहूंगी। अगर वो शख्स मेहमानों में हुआ तो मुझे दिखाई दे जाएगा। मैं पूरा दिन बैठी सब लोगों से मिलती जुलती रही, किसी को चाय पेश की तो किसी के साथ बातें की, मगर वो शख्स मुझे कहीं नज़र नहीं आया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैं मायूस हो गई। सोचा कि रात होगी तो ये बात खुद ही खुल जाएगी, और फिर वही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। मगरिब के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने जाकर फ़ौरन से दरवाज़ा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था। उसे देखकर मेरी हैरत भर आई। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? उसके मुंह से भाभी का लफ्ज़ सुनकर मेरे तो जैसे सर पर आसमान आ गिरा। क्या तुम आज़िर के भाई हो? मैंने रुकते रुकते पूछा था। जी हाँ, मैं आज़िर भाई का छोटा भाई हूँ और आपसे कुछ बात भी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो मुझसे कुछ कहने ही वाला था कि मेरी सास भी दरवाजे तक आ गईं और अपने बेटे को बुलाने लगीं। माजिद बेटे, तुम कब आए? मैंने तुम्हें देखा नहीं। शादी के बाद से तो तुम गायब ही हो गए। घर में इतनी जिम्मेदारियां थीं। भाई, तुम्हारा बड़ा भाई तो शादी की रात ही भागकर अमेरिका चला गया। देखो ना, मैंने उसे कितना मना किया लेकिन फिर भी वो पास नहीं आया। उनकी बातें सुनकर माजिद उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। बस करे माँ जी, अब तो आप ऐसी बातें छोड़ दें। भाई तो अब यहाँ से चले भी गए हैं, मगर आपके दिल को चैन नहीं आया? आए है, क्या पट्टी पढ़ा दी तुम्हें उस आज़िर ने जो तुम एक ही रात में गज़ब खुदा का। मैंने तुम्हें किन अज़ियतों से पाला है, मगर तुम हो कि अपने बड़े भाई की ही ज़ुबान बोलते हो। आइंदा अगर मैंने तुम्हारे मुंह से आज़िर का लफ्ज़ सुना तो बहुत बुरा होगा। और हाँ लड़की, तुम भी किसी उम्मीद में मत रहना। जब तुम्हारा शौहर खर्चा भेजेगा तभी तुम इस घर में रह पाओगी। उसके अलावा अगर तुम्हें घर में कुछ काम है या तुम खाना पीना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे इजाज़त लेना होगी। मैं तुम्हें काम के बदले 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ। ये कहकर मेरी सास अंदर कमरे में चली गई और मैं हक्का बक्का ये सब मंजर देख रही थी। मेरे मैके से भी मेरे भाई और वालिद आने वाले थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं हर सूरत ये बात उन्हें बता कर रहूँगी। अगर ये लोग मुझे रख नहीं सकते थे तो मुझे ब्याह कर इस घर में ही क्यों लाए। मगर इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मेरा देवर यानी कि रात को मेरे कमरे में आने वाला शख्स मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे माफ़ कर दें। मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा, लेकिन यकीन करें मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह समझता हूँ। मैंने तो पलटकर आपका चेहरा भी नहीं देखा। मैं दूसरी तरफ मुंह करके सोया रहा। मैंने आपको एक बहन से बढ़कर इज्जत दी है, और जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। भाई आपसे मोहब्बत करते हैं। बस आप जब हमारी हकीकत जानेगी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और मुझे ये भी ताकीद की कि मैं अपने घर वालों को कुछ न बताऊं। मैंने भी सोचा जज्बाती होने की क्या ही ज़रूरत है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। 1-2 दिन और यहाँ रहूँगी तो मालूम पड़ जाएगा कि मेरी सास को आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है, वो क्या चाहती हैं और उनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो खुश हो जाएं। मगर मेरी सास शायद इस इंतज़ार में थी कि कब मैं फट पड़ूं, उनके सामने अपने शौहर की बुराई करूं और वो इस शादी को खवा दें। बार बार वो ऐसी ही बातें कर रही थीं। जब मेरे भाई मुझसे मिलने के लिए आए तो मेरी सास ने उनके सामने भी यही मुद्दा रख दिया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाई साहिब। मेरी सास ने हाथ जोड़कर मेरे वालिद से माफ़ी मांगी। क्यों बहन, क्या हुआ? मेरे वालिद ने हैरत से पूछा था। मेरे अब्बा और भाईजान सब लोग नाश्ता लेकर मेरे घर आए थे। ये हमारे यहाँ रस्म थी कि शादी के दूसरे दिन मैके वाले दुल्हन के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं। मेरे वालिद हैरत से मेरी सास को देखने लगे। क्या मतलब है बहन जी, क्या मेरी बेटी के साथ आप लोगों ने धोखा किया है? आसिर कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा।
मेरे अब्बा ने हड़बड़ा कर पूछा। जी बस आपको यही बताना चाहती थी। बताएं बहन जी, आप इतनी देर क्यों लगा रही हैं? मेरी तो जान पर बनी है। मेरी इकलौती बेटी है ये, जो मैंने इतने प्यार से आपको दी है। आप ही ने तो कहा था आप मेरी बेटी को हाथ का छाला बना कर रखेंगी। मेरे अब्बा ने कहा। जी मैंने कहा था, अगर मेरी औलाद ना हल्फ निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। आप खुलकर बात करें बहन जी, इतना बात को तूल देने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा जान सुपात लहजे में बोले। भाईजान, दरअसल बात यह है कि मेरा बेटा शादी की रात ही दुबई के लिए रवाना हो गया। उसे वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही थी, बस इसीलिए वो रुका नहीं। कह रहा है कि 6 महीने में वो वापस आ जाएगा, हम सबकी ज़िंदगियाँ बदल देगा। मैं आपकी बेटी से भी शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी। वो शादी की रात ही दुबई चला गया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो फिर बाद में उसे नौकरी ना मिल पाती। मेरी सास बड़े आजिज़ लहजे में ये बातें किए जा रही थीं और अब्बू जान भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। सास ने अब्बा जान को साफ तौर पर कह दिया कि वो मेरा माँ की तरह ख्याल रखती हैं, मुझ पर कभी कोई आँच नहीं आने देंगी, इसलिए वो बेफिक्र हो जाएं। अब्बा जान पहले तो बहुत गुस्से में थे, मगर फिर मेरी सास की मीठी प्यारी बातें सुनकर वो भी खामोश हो गए। बोले कि अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया, गोया मुझे इस घर में रहने से कोई मसला नहीं था। मेरी सास ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और फिर नाश्ते के ख़त्म होने के बाद मुझसे कहने लगी, मैं बेटी होने के नाते तुम्हें ये बात समझा रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ। अगर तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो, हमेशा खुश रहना चाहती हो, तो अपने जहन को किसी और समत में ले जाओ। कुछ अपने बारे में सोचो मेरी बेटी, वरना तो तुम यूं ही पड़ी रह जाओगी। सास की बातें अजीब थी जो मेरी समझ में ना आती। मैं जाकर अपने कमरे में रोने लगी। सिवाय रोने के अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब्बा को तो अम्मा जान ने मुतमईन कर दिया था, मगर मेरे देवर का कमरे में आना और फिर मेरा शौहर, वो शादी की रात ही दुबई चला गया, मुझसे कर सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया कि तभी मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा फ़ोन पर एक अनजान नंबर जगमगा रहा था। एक कमज़ोर लम्हे में मैंने फ़ोन उठा लिया। दिल चाहता था कि सामने जो भी हो मैं उससे बात करूं, अपने दिल का दुखड़ा कह दूं, मगर मेरी ख्वाहिश जल्द ही पूरी हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि आज़िर बोल रहे थे। मैंने उनका हाल चाल पूछा तो वो कहने लगे, तुम परेशान होगी, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, मैं तुम्हें दुबई ज़रूर लेकर आऊँगा। तुम्हारी ज़िंदगी से वो सब कांटे निकाल दूँगा जो तुम्हें अभी परेशान कर रहे हैं। शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। अच्छा सुनो, रात को तुम्हें किसी ने तंग तो नहीं किया? नहीं, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, लेकिन आपका छोटा भाई रात को कमरे में सोया था और मैं उसे आज़िज़ समझ बैठी। मैंने कहा, हाँ मैंने ही उसे कहा था कि वो तुम्हारे कमरे में सोए, मगर इसकी एक वजह है, मुझे अपने भाई पर अंधा एतबार है। ऐसी कोई बात नहीं जैसा तुम समझ रही हो, वो तो तुम्हें अपनी माँ की तरह समझता है। बात मेरी गौर से सुनना। दरअसल मेरी माँ सगी नहीं है, वो मेरी सौतेली माँ है, जबकि मेरे भाई माजिद की वो सगी माँ है। मेरे बाबा ने जब अम्मी से शादी की थी तो अम्मा ने वादा किया था कि वो मेरा ख्याल रखेंगी। सबसे पहले वो मेरी शादी करवाएंगी, क्योंकि अब्बा उन दिनों बीमारी के आखिरी मरहले में थे, उनके बचने के इम्कानात कम थे। अम्मा ने शायद अब्बा की बीमारी और उनकी ज़िंदगी के कम दिन देखकर ही उनसे शादी की थी, वरना अम्मा बेपनाह खूबसूरत थीं। खैर से अब्बा ने वसीयत की थी कि सबसे पहले मेरी शादी होगी, मेरा घर बसेगा, तभी मेरी अब्बा की जायदाद मेरी माँ को मिलेगी। मेरी सौतेली माँ बड़ी ही शातिर दिमाग की औरत है। इन्होंने मुझसे पहले तो रिश्ते के लिए कहा कि वो मेरा रिश्ता एक खूबसूरत अच्छी लड़की से करेंगी और मेरी ज़िंदगी के सब। मुझे अपनी माँ का इरादा मालूम नहीं था। निकाह के बाद मेरी माँ ने एक अजीब नाटक किया। बोली कि अगर तुमने मुझे अपने बाप की जायदाद ना दी तो मैं भी ऐसा नाटक करूँगी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें तलाक देने पर मजबूर कर देंगे। सो बेहतर है कि तुम अभी और इसी वक्त सब जायदाद मेरे नाम कर दो। भाई को ये बात अजीब लगी। इन्होंने मुझसे कहा कि ज़रूर मेरी माँ अब मेरी दुल्हन को और मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना, उसकी हिफाजत करना, बाकी मैं देख लूँगा। वैसे भी मेरा वीज़ा लग चुका है,
बाकी भी काम मुकम्मल हो गए थे। मैं चाहता था कि शादी के बाद इस मुल्क से जाऊं, मगर अम्मा ने मजबूर कर दिया और यूं मैं अपनी जिम्मेदारी अपने भाई को सौंप कर वहाँ से चला गया। भाई को कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि तुम महफूज रहो, क्योंकि मेरी माँ इस हद तक भी जा सकती थी कि तुम पर किसी भी तरह का हमला करवा कर तुम्हें जान से मरवा देती। बस इसीलिए। मगर मैं जानता हूँ मेरा भाई मेरे छोटे बच्चों की तरह है। हम दोनों भाइयों में कोई बैर नहीं, बस बैर मेरी माँ को है, जो इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ से पैसे कमा कर लाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी भी सवर जाएगी। फिर मेरी माँ का रवैया मुझसे बदल जाएगा और तुम अपने कागजात के लिए माजिद से कहो कि वो तुम्हारी मदद करे। शौहर की बात सुनकर मैंने एक ठंडी आह भरी और सोचने लगी, इस मुआशरे में औरत का दुश्मन और कोई नहीं, बल्कि औरत खुद दूसरी औरत की दुश्मन है। मैं सब औरतों से यही कहूँगी कि खुदारा अपनी बहू को अपना दुश्मन ना समझें और ना ही बहुएं अपनी सास को किसी महाज की तरह समझकर सर करने की कोशिश करें।